Hello and welcome to EduGyan. So, dear friends, तो हम रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में जो क्लास 10 का ज्योग्राफी तो उसे हम पढ़ रहे थे। तो आज उसका लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। ओके, तो अप टू एट हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं। रियो डू जेनेरियो और उसके बाद एजेंडा 21 और रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अब तक खत्म हो चुका है। अगर उसमें कुछ डाउट्स होगा प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम शुरू करेंगे लैंड रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। ओके, लैंड रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। So, those who are my YouTube channel students, please subscribe the channel EduGyan. Okay, EDUGYAAN. Please subscribe, share, and जो लोग मेरा एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो उन लोग से निवेदन है कि वो भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट का अपना लाभ उठाएं। तो मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो लोग भी उनको भी बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लैंड रिसोर्सेस, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके, साउंड एंड visibility, everything is important. Yes, everything is important. Yes, all okay. Then let us start today's interesting class, land resource. Okay, so we know land is the most important resource. Okay, land जो होता है ना वो most important resource होता है। क्यों होता है? क्योंकि it supports वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, कि एंटर एग्जिस्टेंस, इस दुनिया का जितना भी एग्जिस्टेंस है दैट इज बेस्ड ऑन द लैंड। ओके, आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस बोलो, वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस बोलो या फिर वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, कुछ भी, तो सबके लिए वी ऑल डिपेंड्स ऑन द लैंड रिसोर्स। ओके, एंड वी नो land is it's a very very necessary and it should be used judiciously। क्योंकि 1 सेंटीमीटर लैंड फॉर्मेशन के लिए हमें हजार हजार साल इंतजार करना पड़ता है। सो लैंड कंजर्वेशन is very necessary and the way we are utilizing the land, that is also necessary। Okay, we have to keep in mind that if we destroy the land resources then we cannot revive it। Yes, we can, but it will take more time, it will take thousands of thousands years। that's why we have to use them judiciously। Okay, so just look, the entire landmass of the world or India is divided into 3 types। just look at part number 1, part number 2, part number 3। so plain area contains 43 percentage, okay, mountain contains 30% and plateau 27 percentage। okay, so most of the land area are covered by plain areas। okay, 43%, plain counts 43% because it provides land for agriculture, okay, and for the survival of the human beings also। then mountain counts 30%। okay, so mountain ensures the flow of perennial rivers। okay, जो हमारा perennial rivers है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। okay, तो जो perennial rivers तो they are originated from the mountains like Himalayas, etc। okay, then the final one is plateaus। so plateau 27%। okay, and most of the plateaus are rich in mineral deposits। okay, they are very very rich in minerals। so shortly, long story short,
और हम बोल सकते हैं मेनली प्लेन एरियाज सपोर्ट अस फॉर द वेजिटेशन, okay, for the vegetation and human settlement. Mountainous region, our perennial rivers, they are originates from the mountainous regions, and it also support the animal, okay, and different kinds of plants and animals kingdom. And plateau, they are very rich in, they are very rich in minerals, okay, and these minerals are very important for the human beings, for their settlement, for their utilization, okay. So these are the distributions of the land. Clear? Then let's come to the land utilizations. Okay, we are using the land resource for the various purposes. For the various purposes, just look at the uses. The first one is land resource are used for the following purposes like forest. Land are not available for the cultivation. Okay, those lands which are not using for the cultivation, they are mainly barren land or wasteland. Okay, और हम उसे क्या कहते हैं, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक we are making, we are constructing for the human settlement, like we are constructing the buildings, we are constructing the roads, factories, etc. Okay, then number 2 is other uncultivated land. So now what we are discussing, guys? Now we are discussing the land utilizations. Okay, how you are using the land, for which purposes we are using the lands. Okay, other uncultivated land. Okay, और other uncultivated land उसमें क्या आएगा, permanent pasture and grazing land. Okay, कुछ lands है those who are given for the permanent pasture and grazing. Next, land or miscellaneous trees, crops, groups. ओके, तो कुछ लैंड्स होता है जिसमें मिसलेनियस ट्रीज होता है. ओके, देन कुछ लैंड होता है कल्चरेबल वेस्ट. ओके, कल्चरेबल वेस्ट. तो कल्चरेबल वेस्ट क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है कि दोज लैंड व्हिच आर अनकल्टिवेटेड, मींस व्हिच आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसे कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड. क्लियर? तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है कि those are the land resources which have not cultivated continuously for the 5 agricultural years are called cultivable wasteland. Then fallow land. तो fallow land में क्या आएगा, एक आएगा current fallow land, then other than current fallow land. Okay, तो current fallow land में क्या आएगा, left without cultivation for 1 or less than 1 year. Okay, तो current fallow land में क्या आएगा, जो land है जो कम से कम 1 साल और उससे कम टाइम तक उसमें कल्टीवेशन हुआ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट फैलो लैंड बोलेंगे. ओके, अदर देन करंट फैलो लैंड क्या है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मींस दोज आर द लैंड्स व्हिच आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, उसको क्या बोलेंगे हम ना, अदर देन करंट फैलो. ओके, नेक्स्ट है नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया क्या होता है ना, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं. तो नेट सोन एरिया क्या हो गया कि द लैंड्स, ओके, व्हिच आर यूज्ड एटलीस्ट वंस फॉर द एग्रीकल्चर, और द लैंड व्हिच इज यूज्ड एटलीस्ट फॉर द agriculture purposes in a year. Okay, once in a year. Okay, so उसे नेट सोन एरिया को भी हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कह सकते हैं. क्लियर? और एक बार बोल दो, ठीक है, और एक बार बोल देता हूं. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि वी आर यूजिंग लैंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. ओके, फॉर डिफरेंट पर्पजेस. देखो, तो पहले क्या है, फॉरेस्ट लैंड. ओके, जनरली फॉर द फॉरेस्ट, जैसे हमारा फॉरेस्ट है हिमालयन बेल्ट में है, और जैसे फॉरेस्ट है हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट. ओके, जितना सारा हमारा फॉरेस्ट है. देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ओके, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन
उसमें दो कैटेगरी है, एक है बेरेन और वेस्टलैंड। ओके, बेरेन और वेस्टलैंड मीन यानी कि वेस्टेड, उसे हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करते, उसमें से उसका कुछ पर्पज नहीं है, उसको मतलब यूज नहीं करते। और एक क्या है ना, लैंड पुट और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ लैंड्स होते हैं जिसे हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। जनरली उसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्रीज को सेटअप के लिए उसे हम यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट, सेकंड हो गया नॉन लैंड नॉट एबल फॉर द कल्टीवेशन। देन थर्ड में क्या आएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या आएगा, उसमें हम फैलो लैंड को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ओके, अच्छा, तो उसका अंडर क्या आएगा, ये तीन आएगा। एक आएगा परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, सेकंड आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, थर्ड आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, तो ये परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ लैंड्स है दैट आर ट्रूली डेडिकेटेड फॉर द pastorals and for the grazing purposes, so those are called permanent pasture and grazing land. Okay, और कुछ लैंड्स है जिसमें मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स होते हैं। मिसलेनियस यानी कि माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग देयर। ओके, सो ये हो गया। ये नेक्स्ट में क्या है, था में क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है कि दूज आर द लैंड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड for continuous or which are not cultivated or which are uncultivated for more than 5 agriculture years, more than 5 agriculture years, इसे बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। ओके, देन आपका क्या आता है, फैलो लैंड। तो फैलो लैंड का तो दो आता है, एक आता है करेंट फैलो और सेकंड नंबर वन क्या आता है, अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो में क्या कहेंगे ना, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, मींस करेंट फैलो लैंड्स आर द लैंड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ओके, इसे बोलते हैं करेंट फैलो लैंड। देन अदर देन करेंट फैलो लैंड क्या आएगा, जो लैंड व्हिच आर नॉट, दोज आर द लैंड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर द past 1 to 5 years. Okay, means those are lands which are uncultivated for past 1 to 5 agricultural years, उस समय क्या कहेंगे, other than current value. Okay, then net zone area, net zone area क्या होते हैं, at least net zone area में, so those are the lands which are used at least once in a agricultural year. ये सब एक एग्रीकल्चर ईयर में कम से कम एक बार यूज करते हैं, उसे बोलते हैं नेट जोन एरिया। और उसे भी क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ओके, तो इतना तक हो गया ना, क्लियर हो गया ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इतना क्लियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ इंडिया। ओके, तो भारत में हम कैसे लैंड यूटिलाइजेशन करते हैं, लैंड को यूज करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है। ओके, देखो मेनली दो फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेस। व्हाट आर दे, वन इज फिजिकल फैक्टर एंड नंबर 2 इज human factors. Clear है? These are the 2 factors which determine the use of the land. Okay, so what are the factors? The number 1 factor is physical factor and the number 2 factor is human factor. Okay, तो फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा, तो फिजिकल फैक्टर में आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। ओके, आप किस रीजन में रहते हैं, उस रीजन का टोपोग्राफी क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज क्लाइमेट, कि उस रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्या क्लाइमेट है, ह्यूमिड है या फिर ड्राई है या फिर मॉइस्चर है, तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ओके, देन सॉइल टाइप, मतलब कौन सा टाइप का सॉइल है, एलुवियल सॉइल है या फिर भांगर खदर या फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होता है, तो कौन सा टाइप का सॉइल है। सो दीज आर द
फिजिकल फैक्टर्स, ओके। एंड नंबर 2 इज ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आएगा आपका कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी and culture and traditions, okay, so these comes under the human factor। तो human factors में क्या आएगा, population density आएगा, technological capability आएगा, culture and traditions आएगा, okay। So these are the two main factors which determine the use of the land, okay, in India, clear। अच्छा, तो आप सबको पता होगा हमारा टोटल लैंड मास कितना है, द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो आज पर द डाटा जो लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल फॉर ओनली 93%, ओके। तो जो डाटा हमें कहता है कि हम आउट ऑफ 100% वी आर यूजिंग ओनली 93%, यानी कि 93% टोटल लैंड एरिया इज इक्वल टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स नॉट फुल्ली 100%। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, देखो, डाटा फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज मिसिंग ड्यू टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम स्टेट को छोड़ के, ओके, और जितना टोटल 8 स्टेट है, तो आसाम को माइनस करके 7 स्टेट्स और है जम्मू कश्मीर, तो उनमें से बहुत सारा डाटा मिसिंग है, ओके। सो मतलब वो रीजन इस तरह है कि उसको काउंट करना थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें 7% हमारा डिड्यूस हो जाता है। जो हमारा लैंड मास है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 93% लैंड मास, ओके। उसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम को छोड़ के और जो 7 स्टेट है एंड जम्मू कश्मीर को, क्लियर, क्लियर है ना। अच्छा, देन हमारा देश का नेट सोन एरिया कितना है, 54% है। कितना है ऑन एवरेज 54% ऑल ओवर इंडिया का, ओके, ऑल ओवर इंडिया का नेट सोन एरिया 50। मैं पहले से बोल, व्हाट इज नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मींस दोज आर द एरिया, दोज आर द लैंड मास व्हिच आर यूज्ड एटलीस्ट वंस इन ए ईयर for agricultural purposes, okay, these are called as the net zone area। so in totality the net zone area of India is 54%, okay। अगर हम ये दो स्टेट देखेंगे, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में इट्स मोर देन नेशनल एवरेज 80%। in the state like Punjab and Haryana they are using 80% land for agricultural purposes, ओके। ऐसा भी कुछ एरिया है जो एरिया में सिर्फ 10% यूज करते हैं। कौन सा एरिया है, द एरिया लाइक, ओके, द स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, ओके। सो दीज आर द एरियाज वेयर ओनली 10% लैंड आर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। सो इन जनरल, इन टोटल, ओके, the net zone area in India is 54%. Clear? Next, the forest cover of India is just over 22%, पर 33% होना चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया में, हमारा देश में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया कवर है, ओनली 22%, बट 33% होना चाहिए, दैट इज लोअर। कितना, 33 माइनस 22, 11%, ओके। 11% कम है नेशनल एवरेज से, मतलब रेकमेंडेड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ओके। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का रिकमेंडेशन क्या है कि हमारा देश में 33% फॉरेस्ट एरिया रहना चाहिए, पर कितना है, 22% है, यानी कि 11% लेस है, 11% कम है, क्लियर है। तो हमें और 11% एरिया में फॉरेस्ट यानी कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। सो दैट इज द मेन कंसर्न फॉर इंडिया, ओके। तो इतने तक क्लियर हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर। अच्छा, ये देखिए हमारा कुछ डाटा, ये है आपका जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960-61 का, और ये था आपका 14-15 का, ओके। ये देख लो, ये डाटा है, ये आपका 1960-61 का, और ये 14-15 का डाटा है,
क्लियर है? आइए, ये है आपका 46.26%। ओके, तो इसमें देखो 46.26% आपका क्या है, नेट सोन एरिया है ना, ये आपका नेट सोन एरिया। इसमें कितना है ना, 45.8, अप्रोक्सीमेटली सेम है। इधर देखो ये आपका 18.11%, ये आपका थोड़ा बड़ा है 23.3%। इस तरह इसको आप थोड़ा देख लेना। ओके, सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको बस समझना चाहिए, उसमें कुछ नहीं कि उसको याद रखना, नहीं नहीं, उसको इस पे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, बस ये दो तीन चीज याद रख लेना। ये जो आपका क्या है, नेट सोन एरिया आपका जो 1960-61 में कितना था, 46.26% था, वो कम हो गया, कितना हो गया, 45.5% हो गया 14-15 में। ओके, और जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया मतलब बड़ा है। ओके, फॉरेस्ट एरिया देखो, ये फॉरेस्ट एरिया आपका कितना था, 18.11% था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 23 पॉइंट ये हो गया। ओके, ये बट ये बैरन एंड अनकल्चर, देखो बैरन लैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड कितना था, वो 18.1 था, वो घट हो गया, मतलब कम हो गया, उसे 5.5%। ये भी कुछ तरह अच्छा है, इसको मतलब यानी कि हम उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ भी पर्पज में उसको भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें आप थोड़ा इसको ध्यान दे देना। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ेंगे यस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ना लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड क्यों डिग्रेड होता है और हम उसको कैसे कंजर्व करेंगे, उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे उसको देखते हैं। ओके, यस, तो एज पर द डाटा 130 million hectares of land are degraded in India। भारतवर्ष में 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड ऑलरेडी डिग्रेड है। ओके, यानी कि उसमें 28% बिलोंग टू फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड, 56 बिलोंग्स टू वाटर एरोडेड एरिया एंड रेस्ट अफेक्टेड बाय द सलाइन एंड अल्कालाइन डिपोजिट्स। क्लियर है? यानी कि डाटा के हिसाब से भारतवर्ष में 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड एरिया ऑलरेडी डिग्रेडेड है। ओके, जिसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेड है, उसमें 28% फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है। 28% क्या है, फॉरेस्ट। 56% क्या आएगा आपका, बिलोंग्स टू वाटर एरोडेड एरियाज। ओके, कुछ एरिया है, दूज एरियाज आर एरोडेड बाय द वाटर, मींस 56% एरियाज आर eroded by the water। so 56 plus 28 कितना आएगा, 84 हो गया, 84। और जो 16% बचा, ओके, रेस्ट अफेक्टेड बाय द सलाइन एंड अल्कालाइन डिपोजिट्स। सलाइन यानी कि सॉल्ट वाटर्स, ओके, सलाइन एंड अल्कालाइन डिपोजिट्स। तो क्लियर हो गया, 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड अप टू डेट डिग्रेड है, उनमें से 28% फॉरेस्ट, 56% लैंड मास आर डिग्रेडेड बाय द वाटर्स एंड रेस्ट 16% आर अफेक्टेड बाय द सलाइन एंड अल्कालाइन डिपोजिट्स। ये आपका क्या था, फैक्टर्स बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा फैक्टर्स है, इसमें क्वेश्चन अराइज करेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर है। पहले उसमें क्या आपके आएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ओके,
So their contribution is significantly higher for the land degradation. ओके, तो उसका पहला कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का अंडर क्या आएगा? डिफॉरेस्टेशन आएगा, ओवरग्रेजिंग आएगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग आएगा। ओके, तो जिनका परसेंटेज ज्यादा है। सेकंड क्या है? डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। ओके, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। The states which are severely affected by the mining activities are क्या क्या है उनमें? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो उनमें से जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है मेनली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज। ओके, कुछ स्टेट है जिन स्टेट में ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, ओके, ओवरग्रेजिंग के लिए लैंड डिग्रेडेशन होता है। कौन सा स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन 4 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 स्टेट में ड्यू टू ओवरग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके, देन ये जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, उधर ओवर इरिगेशन के लिए लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ माइनिंग एक्टिविटीज लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर द सिरामिक इंडस्ट्री दैट जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ओके, टू द एटमॉस्फेयर। देन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस as waste became major issues of land and water pollution and water pollution. What are the industrial effluents, industrial wastes? Okay, so these are the factors. Clear हो गया? और एक बार बोल दो, मेनली नंबर 1 पॉइंट क्या आएगा आपका? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या आएगा? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एटसेट्रा। सेकंड में क्या आएगा? डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज इन द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। एंड नंबर 3 द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग द लैंड गेट्स डिग्रेडेड। ओके, द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ड्यू टू द ओवर इरिगेशन द लैंड गेट्स डिग्रेडेड। In some activities like grinding of the limestones, which are very important for the cement industry, calcite and soapstones, which are used for the ceramic industry, that are responsible for the land degradation. Okay, and the final one is industrial effluents or waste, that is major resource for the land and water pollution, land and water degradation. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। तो अगर उसका तो कुछ मतलब क्या है? अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उसे रिस्टोर करने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो माध्यम होगा। तो ये है आपका टेक्निक्स टू इंप्रूव द लैंड क्वालिटी। लैंड क्वालिटी को हम कैसे, कौन सा टेक्निक से उसे हम बेहतर कर सकेंगे? ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। क्या करो? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका ऑपोजिट एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द विलेज। ओके, आप एफॉरेस्टेशन कीजिए, यानी कि जंगल आप नया बनाइए, यानी कि आप पेड़ पौधे लगाइए। ओके, एफॉरेस्टेशन कीजिए और ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए। ओके, देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बसेस इन एरिड एरियाज। ओके, देन क्या हो आपका? पहला आ गया आपको एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग। सेकंड में क्या आपका? प्लांटिंग ऑफ सेल्ड बेल्ट प्लांट्स। ओके, और आपका जो सैंड ड्यून है, तो सैंड ड्यून एरियाज में आपको थ्रोनी ब्रशेस को ग्रो करना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या आपको, आपके लिए क्या देखिए सजेशन, आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। आपके पास जो वेस्टलैंड है उसको आप प्रॉपरली मैनेजमेंट कीजिए। ओके, उसको और कुछ, अगर वो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है उसको दूसरा काम के लिए यूटिलाइज कर लीजिए, इंडस्ट्री उसमें फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ओके, उसको थोड़ा कम कीजिए।
नंबर 4 क्या है, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, तो माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कीजिए। एंड फिफ्थ में क्या है आपका, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके, तो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आता है तो उसके डिस्पोजल करने से पहले को प्रॉपर्ली उसको क्या कीजिए, उसको मैनेजमेंट कीजिए, उसको ट्रीटमेंट कीजिए। ओके, पहले ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिस्पोज कीजिए। ओके, सो दीज आर द सजेशंस। क्लियर हो गया, क्या सजेशंस, तो पहला क्या आपका, एफोरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। नंबर 2 क्या है, तो आपको शेल्टर बेड प्लांट्स आपको प्लांटिंग करना चाहिए, और जो आपका सैंड ड्यून एरिया है तो उसमें आपको थ्रोनी बसेस आपको लगाना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, आपके पास अगर कुछ वेस्टलैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए। देन फोर्थ क्या है, आपका जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कीजिए। देन फिफ्थ में क्या आएगा, आपका जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है तो उसे डिस्पोजल करने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट कीजिए, देन यू टू डिस्पोज इट। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस, दीज आर द टेक्निक्स टू इंप्रूव द लैंड रिसोर्सेस, लैंड क्वालिटी। ओके, अच्छा, देन हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉइल पढ़ेंगे। तो सॉइल हम कल डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा सा सॉइल का स्ट्रक्चर देख लो इधर। ओके, सो दीज आर स्ट्रक्चर। जो आपका सॉइल का जो टॉप में है उसे बोलते हैं टॉप सॉइल, और उसको क्या बोलते हैं, अपर सॉइल। ये तो मेन है। इसमें ग्रीन ग्रीन क्यों है, इसमें ग्रीन यू है क्यों, दिस कंटेंट्स ह्यूमस, दिस कंटेंट्स ह्यूमस। ये हमारा यूजेबल है क्योंकि हमारा जो प्लांट्स, ओके, तो प्लांट्स को जब उनका न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है, इस टॉप सॉइल से मिलता है। ओके, और जो हमारा जो क्या बोलते हैं डीकंपोजर से, तो डीकंपोजर्स मेनली इस टॉप सॉइल और अपर सॉइल में वो रहते हैं। ओके, देन ये सॉफ्ट सॉइल है, ये रॉक सैंडी सरफेस है। देन सबस्ट्रेटम, ओके, देन नेक्स्ट है ऑन वेदर्ड और पेरेंट बेडरॉक्स, उसमें भी बनता है। ये हमारा कुछ काम, मेनली ये जो टॉप सॉइल, ये हमारा मेन मतलब काम का है, ये हमारा यूज है। ओके, और जो पार्ट बचा उसको हम कल खत्म कर देंगे। तो आज तक मतलब आज के लिए इतना। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स, प्लीज सब्सक्राइब एडुज्ञान। ओके, तो एडुज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए मतलब ला पाएंगे और आपको देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत पास में है और एग्जाम कैसे बेहतर होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ओके, और जो मेरे एप्लीकेशन में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन एडुज्ञान। ओके, एंड एडुज्ञान को डाउनलोड कीजिए और उसमें कुछ चार्जेस है, यानी कि 499 समथिंग, तो आप उसका भी फायदा उठाइए। सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।